Good morning, students. This is lecture number 6 for Unit 3, Surface and Interfacial Tension. So in this video, we will discuss adsorption at liquid interface, the next topic. So molecules added to liquid modify interface in different ways. इसमें different ways में हम discuss करेंगे positive adsorption and negative adsorption. Positive adsorption क्या हुआ कि concentration at the interface exceeds the concentration in the bulk of liquid. ठीक है, example हो गया sodium lauryl sulfate, tweens, triethanolamine. इनका concentration ज्यादा मिलेगा हमें या exceed या ज्यादा quantity में होगा interface पे as compared to their concentration in the bulk. They partition in favor of interface, like वो हमेशा उनका favorable जो रहेगा orientation रहेगा वो interface रहेगा, and of course they reduce interfacial tension. और इस तरह की property required रहती है हमें in stabilization of suspension and emulsion. Positive adsorption is required. Negative adsorption, molecules prefer to remain in bulk. Bulk में ज़्यादा रहते हैं as compared to interface. Example, inorganic electrolyte, sodium chloride, and they enhance surface tension. ठीक है? Some substances do not affect the interfacial tension when they are added to water. Example, sugar, carbohydrate, and cellulose derivatives. ठीक है? तो ये कुछ substances हैं जो interfacial tension को affect नहीं करते हैं. अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं adsorption at liquid interface की, हम बात करते हैं surface free energy की. तो surface free energy was defined as the work that must be done to increase the surface by unit area. जो हमने पहले की videos में देखा होगा कि surface energy is the work done to increase the surface by unit area. As a result of expansion, more molecules must be brought from the bulk to the interface. और जब ये surface energy change होगा, जब ये work done होगा, तो ज़्यादा molecules bulk में से surface पर आएंगे. Certain molecules and ions, when dispersed in the liquid, their concentration at the interface exceeds their concentration in the bulk of liquid. ठीक है? जैसे अभी हमने positive adsorption की बात करी. Obviously, the surface free energy and the surface tension of the system are automatically reduced. Such a phenomenon where the added molecules are partitioned in favor of interface is termed adsorption या positive adsorption. And inorganic electrolytes का यहाँ पे मैंने फिर से example लिखा है, are partitioned in favor of the bulk, leading to negative adsorption and a corresponding increase in the surface free energy and the surface tension. तो ये basically positive और negative adsorption को हमने surface free energy के terms में explain किया है. अब types of monolayer क्या बनती हैं at liquid interface? Adsorbed material को 2 groups में divide किया गया, या तो soluble monolayer बनाएंगे या फिर insoluble film बनाएंगे. And we are talking about the liquid interface या liquid surface. Distinction जो होती है इन दोनों groups के बीच में, वो इस basis पे होती है कि solubility क्या है adsorbate की in the liquid subphase. Distinction is made on the basis of solubility of the adsorbate यानी surface active agent in the liquid subphase, जिसके ऊपर हमने वो डाला है, यानी कि इस केस में आप वाटर मान लें. एग्जाम्पल यहाँ पे है अमाइल अल्कोहल. अमाइल अल्कोहल में 5 कार्बन होते हैं एंड ये फॉर्म करता है सॉल्युबल मोनोलेयर ऑन वाटर. सेटाइल अल्कोहल जिसमें 16 कार्बन होते हैं, ये एक इनसॉल्युबल फिल्म बना देता है वाटर पे. अब यहाँ पर हम 3 पैरामीटर्स को कंसिडर करते हैं इन फिल्म्स को, इन मोनोलेयर को इवैल्यूएट करने के लिए. सबसे पहला तो सरफेस टेंशन इवैल्यूएट करते हैं. दूसरा होता है सरफेस एक्सिस, यानी कि अमाउंट ऑफ एम्फीफाइल पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इन एक्सिस ऑफ अमाउंट इन बल्क, यानी बल्क से कंपैरिजन में
कितना ज्यादा एम्फीफाइल प्रेजेंट है सरफेस पे, उसको हम कहते हैं सरफेस एक्सिस। और सी क्या होता है, कंसंट्रेशन एम्फीफाइल इन द बल्क। अब इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। Emulsions are stabilized by the presence of interfacial film between oil and water phase। यानी इमल्शन के अंदर जो छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स या ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं वो स्टेबलाइज रहती हैं अगर उनके इंटरफेस पे इंटरफेशियल फिल्म है। Area occupied by amphiphile at interface is important for stability of emulsion. Wetting and detergency depends upon concentration of surfactants adsorbed at the interface. Surfactant layers can also be used as in vitro models to study biological process. तो surfactant layers जो हम मतलब जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है soluble monolayer, उनको हम in vitro model मतलब कि अगर हमें ये देखना है कि कितना जो भी हमने फॉर्मुलेशन तैयार किया है वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है थ्रू द स्किन या थ्रू द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, तो इन लेयर्स को हम यूज कर सकते हैं एज अ इन विट्रो मॉडल। टाइप्स ऑफ मोनोलेयर, ये आगे का टॉपिक है। सॉल्युबल मोनोलेयर, यहाँ पे हम पहली बात करें सॉल्युबल मोनोलेयर। एडिशन ऑफ एम्फीफाइल टू अ लिक्विड लीड्स टू रिडक्शन इन सरफेस टेंशन owing to these molecules adsorbed at monolayer। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो एम्फीफाइल यूज किया है हम ये कह रहे हैं कि वहां पे एक मोनोलेयर बना रहा है। मोनोलेयर मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल की थिकनेस वाली लेयर बना रहा है। और इस फेज को अगर आप इस फिगर में देखें तो इस इंटरफेस को हम कहते हैं सरफेस फेज, जहां पे ये सॉल्युबल मोनोलेयर फॉर्म हुई है। The addition of amphiphiles to a liquid system leads to a reduction in surface tension owing to these molecules or ions being adsorbed as a monolayer. Adsorption of amphiphiles in these binary systems was first expressed quantitatively by Gibbs. So इन amphiphiles के ऐड करने से जो रिडक्शन हो रहा है सरफेस टेंशन पे, उनको क्वांटिटेटिवली फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस किया गया था बाय द साइंटिस्ट गिब्स। ये इनका फॉर्मूला है। ये जो कैपिटल गामा है इसको हम कहते हैं सरफेस एक्सिस, जो मैंने पहले की स्लाइड में आपको बताया। सरफेस एक्सिस is the amount of amphiphile per unit area of surface in excess of amount in bulk। C जो है कंसेंट्रेशन ऑफ एम्फीफाइल इन द बल्क है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, D गामा बाय DC है, ये चेंज इन सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन विद चेंज ऑफ बल्क कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। और यहाँ पर आइसोथर्म जो हमने लिया है दैट इज सजेस्टेड बाय गिब्स, इसको हम कहते हैं गिब्स एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसको हम समझते हैं, व्हेन सरफेस टेंशन ऑफ अ सर्फेक्टेंट, यहाँ पे हमने सरफेस टेंशन लिया है, इज प्लॉटेड अगेंस्ट लॉग ऑफ सर्फेक्टेंट कंसेंट्रेशन इन बल्क। हमने यहाँ पे लॉग लिया है, लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इन द बल्क। इनिशियल कर्व्ड सेगमेंट, यहाँ पे आप ये कर्व्ड सेगमेंट देख रहे हैं, इनिशियल कर्व्ड सेगमेंट इज फॉलोड बाय अ लीनियर सेगमेंट। ये स्ट्रेट है, लीनियर सेगमेंट है। इट शोज कि यहाँ पे शार्प डिक्रीज हो रहा है सरफेस टेंशन में। और पॉइंट सी जो है ये हमारा क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन एट विच मिसल्स आर फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन। बियॉन्ड CMC यानी इसके आगे हम जब बढ़ेंगे, हम इसमें और कंसेंट्रेशन जब ऐड करेंगे, तो ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे फिर से एक लीनियर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है विच शोज दैट देयर इज नो फर्दर डिक्रीज इन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यहाँ पर आकर के ये कांस्टेंट हो गया है। सरफेस टेंशन या ये जो पॉइंट है कैपिटल B, वो इंडिकेट करता है सरफेस एक्सिस को। ठीक है, यानी कि सरफेस कंसेंट्रेशन यहाँ पर जो है सर्फेक्टेंट्स की, वो यहाँ पे सैचुरेट हो गया है। जो हमारा इंटरफेस है वो एड्सॉर्प्शन से सैचुरेट हो गया है, तो इसको हम कहते हैं सैचुरेशन एड्सॉर्प्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इज अचीव्ड। अब नेक्स्ट इज insoluble monolayer and the film balance।
Certain oils, when placed on a clean surface of water, they spread to form a layer 1 molecule thick, यानी monomolecular layer बना देते हैं और उसके ऊपर एक film बना देते हैं. The cross-sectional area of the film can be calculated if molecular weight and density of the spreading oil are known. तो ये फॉर्मूला है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फिल्म निकालने का पर मॉलिक्यूल, क्योंकि MS is molecular weight, S is the surface area covered by the film, V हो गया वॉल्यूम ऑफ द स्प्रेडिंग लिक्विड, रो उसकी डेंसिटी हो गई और N एवोगैड्रो नंबर हो गया. तो यहाँ पर अगर आप फिगर में देखें तो यहाँ पर एक ट्रफ लिया गया है, यानी कि कंटेनर लिया गया है जो कि बहुत वाइड होता है और नीचे एक्वस सब फेज है. यहाँ पे हमने एक मूवेबल बैरियर लिया है, यहाँ पे एक फ्लोटिंग बैरियर लिया है. फ्लोटिंग बैरियर से कनेक्टेड है फिल्म प्रेशर मेजरिंग यूनिट और यहाँ पर हमने स्प्रेडिंग लिक्विड डाला है. तो ये बेसिकली दिखा रहा है क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द इंटरफेस आफ्टर स्प्रेडिंग, जब वो स्प्रेड हो चुका है. तो जो मूवेबल बैरियर है उसको हम पुश करेंगे टुवर्ड्स द फ्लोटिंग बैरियर और एरिया जो है फिल्म का उसको हम मेजर करते चलेंगे और उसके संग संग हम हर मोमेंट पर ये देखेंगे कि फिल्म का प्रेशर कितना आ रहा है और यहाँ पर हम उस यूनिट से उसको मेजर करेंगे. The film pressure is then plotted against the area of the film or more conveniently against the cross-sectional area per molecule. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने साइड व्यू दिखाया है, ये टॉप व्यू है, यानी कि जब हमने फ्लोटेब मूविंग बैरियर को फ्लोटिंग बैरियर की तरफ पुश करना शुरू किया तो ये मॉलिक्यूल्स थोड़े स्प्रेड थे. फिर हमने और प्रेशर इंक्रीज किया, यानी कि उसको मूव करना शुरू किया तो यहाँ पर ये और क्लोज आ गए और जब हमने और ज्यादा प्रेशर बढ़ाया तो एकदम काफी क्लोजली एसोसिएटेड हो गए सारे मॉलिक्यूल्स. और इसको हम शो करेंगे एक ग्राफ में, यानी कि सरफेस प्रेशर हमने यहाँ पे लिया है दैट इज पाई और यहाँ पे हमने लिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो जैसे जैसे ये इंक्रीज हो रहा है प्रेशर, हम यहाँ से इसको देखते हैं 80 से हम अगर लेते हैं तो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है, क्योंकि हम जब मूवेबल बैरियर को फ्लोटिंग बैरियर की तरफ ला रहे हैं तो हम एरिया कम दे रहे हैं फिल्म को, उस स्प्रेडिंग लिक्विड का एरिया हम कम कर रहे हैं. तो जैसे जैसे एरिया कम आता जाएगा मॉलिक्यूल्स और क्लोज आते जाएंगे और एक मोमेंट पर आकर के वो काफी क्लोज हैं अगर आप यहाँ पे देखें, और इस पॉइंट पर आकर के वो फिल्म जो है ब्रेक हो जाएगी, वो कोलैप्स हो जाएगी. सो अभी इस वीडियो में हम यहीं तक कवर कर रहे हैं.